Hello everyone, welcome to my channel and today we are going to do exercise 2.3 class 11th mathematics. If you have not subscribed my channel yet, subscribe it to get best explanation of NCERT problems. Also press the notification bell to get all the upcoming update. I have also uploaded Vedic maths trick that makes your calculation very easy. So go to I button and check there. Now let us start with exercise 2.3. Before we start, we have to go through the examples that is given above it. So let us see what are the examples given. Earlier examples we have already done, so go to I button and check that video also, that are very important. So we were talking about example 15. What is given here in example 15? Define a real valued function where r minus 0 means they are talking about all the real numbers except 0. They are not taking 0 in the real numbers. Okay, so they are talking about real valued function where fx equal to 1 upon x. अब आपको पता है कि x कभी भी यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू को 0 रखेंगे तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा. सो इसीलिए इस फंक्शन में क्या लिया है, x को हमने 0 को पहले ही इसमें से हटा दिया. सारे रियल नंबर्स लेंगे बट वी विल नॉट बी एबल टू टेक 0, राइट. So according to that function we have to fill this table. So if I am putting minus 2 here, so 1 upon minus 2, it will be minus 0.5. okay, similarly we fill all the tables given according to the function. So ये table जो हमें given है, we have filled this table according to this. Now after completing this table, what we need to do, we need to draw the graph of it. So देखते हैं कि 1 upon x का कैसे बनेगा ग्राफ. ठीक है, तो जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं, yes the graph will be in this form. Yes, you can see here कि यहाँ पे जब हम ग्राफ बना रहे हैं तो ये ग्राफ 0 पे इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि 0 इस फंक्शन के अंदर है ही नहीं. ठीक है, सो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि जो भी हमारा इस तरह का फंक्शन होगा 1 upon x है, 1 upon 2x है, that will not pass through 0, right. Now they are asking for the domain and range of the function. तो अगर हम डोमेन की बात करें सेट ऑफ ऑल फर्स्ट नंबर्स, तो इट विल बी अगेन दैट रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0. डोमेन विल बी ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0, है ना, 0 नहीं आएगा उसमें. और अगर हम रेंज की बात करें तो यहाँ रेंज के अंदर भी कैसे नंबर्स आएंगे, सारे ही रियल नंबर्स आएंगे बट दिस विल नॉट कैरी 0 एज वेल. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट ग्राफ एंड नेक्स्ट फंक्शन, द मॉडुलस फंक्शन. सो मॉडुलस फंक्शन क्या होता है? मॉडुलस फंक्शन होता है, सपोज आई एम टेकिंग एफ एक्स इक्वल टू बार, इफ आई एम टेकिंग एफ एक्स इज इक्वल टू बार ऑफ एक्स. ओके, सो इसमें क्या होगा कि फॉर x बिलोंग्स टू r, मतलब x जो है रियल नंबर से बिलोंग करता है. मॉडुलस फंक्शन में आपको ये ध्यान रखना है कि fx की वैल्यू, अगर आप x के मॉडुलस की बात कर रहे हो तो fx की वैल्यू क्या होगी? यस, fx विल बी इक्वल टू x ही रहेगा अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है. ठीक है, और माइनस x होगा जब x की वैल्यू लेस देन 0 है. ओके, मीन्स आपको x की वैल्यूज x और माइनस x, ये दो वैल्यूज जब आपके पास होंगी, मॉडुलस ऑफ x विल बी x, मॉडुलस ऑफ माइनस x विल बी x. ओके, मतलब किसी का मॉडुलस अगर आप लेते हैं, नेगेटिव नंबर का भी पॉजिटिव आता है और पॉजिटिव का तो होता ही पॉजिटिव है. सो ग्राफ ऑफ द मॉडुलस फंक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, yes the graph can be represented as this, क्योंकि यहाँ पे 2 के लिए भी 2 है और -2 के लिए भी फंक्शन की वैल्यू 2 है. ओके, सो व्हेन वी ड्रॉ दिस वी विल गेट दिस टाइप ऑफ ग्राफ. नाउ द नेक्स्ट वन इज सिग्नम फंक्शन. तो ये ग्राफ आपको अच्छे से याद रखने हैं कि किस किस टाइप के ग्राफ हमने अभी तक कर लिए हैं. द नेक्स्ट इज सिग्नम फंक्शन. द फंक्शन
R2 are defined by fx equal to 1 if x is greater than 0. What is given here? Fx equal to 1 if x is greater than 0, fx equal to 0 if x is equal to 0, and fx equal to minus 1 if x is less than 1. So let us see signum function का ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करते हैं. So here we have the function of signum function. The domain of signum function and range is a set of minus 1, 0 and 1. Okay, the graph of the signum function is given. इस तरह से का signum function बनता है. Right. Now greatest integer function. Greatest integer function क्या होता है? एक function suppose हमने लिया यहाँ पे. If I am taking any numbers, for example if I am taking 2.3, ओके x की जगह पे मैंने 2.3 लिया. सो इसकी वैल्यू क्या आएगी? यस, इट विल बी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 2.3 के बाद. सो अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिया यहाँ पे x, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? x होगी. अब x की डिफरेंट वैल्यूज लेके मैं आपको बताती हूँ. और उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम जज कैसे करेंगे कि क्या इसकी वैल्यू होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल अगर मैंने x की वैल्यू को लिया 2.1, ठीक है, x की जगह पे मैंने लिया 2.1. तो अब इसे आप नंबर लाइन पे देखिए. नंबर लाइन पे 2.1 कहाँ आता है? 0, 1, 2, 3, 4, ये मेरी नंबर लाइन है. और इस नंबर लाइन पे 2.3, 2.1 समवेयर यहाँ पे आएगा, इस जगह पे आएगा. ठीक है, तो आपने क्या करना है? आपने जो भी आपका नंबर है उसकी इमीडिएट लेफ्ट इंटीजर चेक करना है. ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी इंटीजर हैं उन सब में ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है? 2. ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब है कि जो भी 2.1 से पहले इंटीजर्स हैं उनमें सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है. सो हम कौन से इंटीजर्स चेक करते हैं? लेफ्ट में. तो इसका इमीडिएट लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है? 2 है. इसी तरह से अगर मैं लूँ 2.2, यस द आंसर विल बी सेम, 2 ही आएगा. अगर मैं लूँ 2.4, आंसर विल बी सेम, अगेन यू विल गेट 2. इफ आई गेट 2.9 तो भी आंसर सेम ही आएगा. ठीक है, क्योंकि 2.9 से पहले जितने भी इंटीजर है उन सब में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वो कौन सा है? 2 है. अब बात आती है कि अगर मैं कोई नेगेटिव नंबर लेती हूँ, सपोज मैंने लिया -1.2. अब इसमें स्टूडेंट सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं कि -1.2 को वो लिख देते हैं -1, बट ये बिल्कुल गलत है. ठीक है, अगर आपने -1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखना है तो वो क्या होगा? -1.2 से जस्ट पहले आप चेक करो कि कौन सा इंटीजर है. -1.2 विल लाई हियर. सो इससे पहले यू हैव दिस इंटीजर -2. ठीक है, तो नेगेटिव नंबर में हमेशा ऐसे ही होगा. जैसे -1.2 आपने लेना है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, द वैल्यू विल बी -2. If you are taking -5.6 in greatest integer function, its value will be -6. -5.6 से पहले जितने भी इंटीजर है उनमें सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है? -6. अब क्वेश्चन है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं. आई थिंक ये तो आपको क्लियर हो गया होगा. मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूँ. सपोज आई हैव -2.9. सो -2.9 के लिए आप क्या लिखेंगे? यस, इट विल बी -3. तो पॉजिटिव इंटीजर में तो ये बहुत ही सिंपल है. पॉजिटिव इंटीजर में तो डेसिमल से पहले जो होल वैल्यू है वही आपका आंसर होगी. बट नेगेटिव इंटीजर्स में जो भी यहाँ पे है, सपोज -1 है तो -2 आपका आंसर है, -5 है तो -6 आपका आंसर होगी. अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का हम ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं. और उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि ये जो वैल्यू है, सपोज मैंने लिया 1.1 से लेके अगर मैं 1.9 तक लिखूँ, so you can check here कि value of 1.1 is 1, 1.2 is also 1, 1.3 is also 1. Up to 1.9 you will get the value of greatest integer function as 1. इसी तरह से अगर आप 2.9 लेते हैं, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेंगे, then value will be
2. सो नाउ लेट अस सी कि ग्राफ कैसे बनता है इसका. सो देखिए यहाँ पे इसका ग्राफ बनाने के लिए अगर हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मान लो मैंने x की वैल्यू ली है -1 वैल्यू, ये -1 है, तो -1 वैल्यू किस किस के लिए आ सकती है. -1 वैल्यू -0.2 के लिए भी होगी, -0.3 के लिए भी होगी. तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक सारी वैल्यूज को कवर करेगा. तो हम इसको कैसे लिखेंगे, लेकिन हाँ 0 के लिए नहीं होगी. अगर हम -1 हमारी वैल्यू आ रही है तो वो 0 उसमें एक्सक्लूड होगा. ठीक है, 0 इंक्लूड नहीं होगा. सिमिलरली अगर 1 वैल्यू आ रही है तो यानी कि x की क्या क्या वैल्यू होंगी, y की वैल्यू अगर आपको 1 मिली है तो x की क्या क्या वैल्यू होंगी, 1 से लेके 2 तक सारी वैल्यूज होंगी, मतलब 1.1, 1.2, 1.3 सारी होंगी. बट उसमें 2 एक्सक्लूड होगा. 1.9999 भी लें तो भी इसी में आएगा, बट 2 नहीं होगा. तो अगर हम इसको प्लॉट करते हैं देन वी विल गेट दिस टाइप ऑफ ग्राफ. सो इस टाइप का ग्राफ बनेगा आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए. सो लेट्स सी नेक्स्ट व्हाट काइंड ऑफ फंक्शन डू वी हैव. देखिए अलजेब्रा ऑफ द रियल फंक्शंस. तो हम एक्सरसाइज करने से पहले अलजेब्रा की बात करते हैं कि अगर हम एडिशन करना चाहते हैं दो फंक्शंस का, ओके, if we need to find out f plus g, then yes we can add the functions directly, there is not an issue. ठीक है, fx plus gx हम इसको ऐसे लिखेंगे. then subtraction में भी yes we can directly subtract the function. so if you have fx f minus g of x, then you can get fx minus gx. ओके, इफ यू हैव अल्फा इंटू एफ एक्स तो क्या होगा, यस वी कैन राइट इट एज अल्फा एफ एक्स. पूरी के पूरे फंक्शन को ही हम अल्फा यानी कि किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई भी नंबर हो हमारे पास. मल्टीप्लीकेशन ऑफ रियल फंक्शंस, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टेकिंग एफ इंटू जी एक्स देन यस इट विल बी एफ एक्स इंटू जी एक्स. एंड क्वोशंट कैसे निकालेंगे हम, क्वोशंट है f अपॉन जी एक्स. इफ यू हैव टू फाइंड आउट f अपॉन जी एक्स देन इट विल बी एफ एक्स अपॉन जी एक्स. तो ये सारे क्वेश्चंस, ये सारी जो भी एल्गोरिथम हम यूज करेंगे अपने क्वेश्चंस को करने में. नाउ वी हैव एग्जांपल 16. लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड जी एक्स इक्वल टू 2x plus 1 ऑफ टू रियल फंक्शंस. देन वी हैव टू फाइंड आउट f plus g. ओके, लेट अस सी हाउ टू डू दिस क्वेश्चन. f plus g हमें फाइंड करना है. सी f plus g we need to find, so that will be equal to yes fx plus gx. so by algebra of real function we can say that f plus g into x equal to fx plus gx. so fx is equal to x square here and gx equal to 2x plus 1. so the value of this f plus gx will be x square plus 2x plus 1. now what is given in the next, हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है f minus gx. so f minus gx will be equal to fx minus gx. fx की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, fx की वैल्यू रख देते हैं x स्क्वायर और gx की वैल्यू कितनी है 2x plus 1. so it will be x स्क्वायर minus 2x minus 1. ओके, नेक्स्ट हमें फाइंड करना है fgx. so it will be fx, yes fgx will be fx into gx. तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, एक्स स्क्वायर इंटू 2x plus 1. एंड वंस यू मल्टीप्लाई दैम, डायरेक्ट आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर. एंड लास्ट है आपके पास f अपॉन जी एक्स. सो f अपॉन जी एक्स, तो ये होगा fx अपॉन जी एक्स. तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन 2x प्लस 1. ओके,
वेयर एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू, यहाँ पे कंडीशन लग जाएगी कि एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू -1/2, तो यहाँ पे नहीं लिख पा रही हूँ मैं. सो लेट अस टेक द नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज एग्जाम्पल 17. सो एग्जाम्पल 17 में आपको क्या गिवन है? Yes, in example 17 you have fx is equal to root of x and gx is equal to x. ये दो चीज़ें आपको गिवन है, gx equal to x. Be two functions defined over the set of the non-negative real numbers. So you have to find out f plus gx. If you would like to find out f plus gx, so it will be fx plus gx. बहुत सिंपल है ये तो. fx plus gx will be yes root x and plus x. Now f minus gx, तो यहाँ पर भी आप सेम वैल्यूज पुट कर दीजिए. इट विल बी fx minus gx and the answer will be root of x minus x. Right, now f g into x, so it will be fx into gx, fx into gx. fx into gx means root x multiply x, so it will be x root x, या आप इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करोगे तो आ जाएगी x की पावर 3/2. एंड लास्ट आपको फाइंड करना है f अपॉन जी एक्स. सो इट विल बी इक्वल टू fx अपॉन जी एक्स, fx अपॉन जी एक्स. सो यस रूट x अपॉन x. राइट, सो दिस विल बी द आंसर. और वी कैन से दैट हियर x raised to power -1/2 will be the answer. Now let us see what is given in the exercise. सो यहाँ क्वेश्चन 1 में आपको दिया विच आर द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस, गिव रीजन. इफ इट इज़ अ फंक्शन डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज. ओके, तो आपको अगर ये पता करना है फंक्शन है या नहीं है, बहुत सिंपल सी एक ट्रिक है. आप सारे एलिमेंट को चेक करो, फर्स्ट एलिमेंट कहीं भी रिपीट नहीं होना चाहिए. सो क्या क्या है यहाँ पे? फर्स्ट एलिमेंट 2, 5, 8, 11, 14, 17. तो यहाँ पे तो कोई भी फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं हुआ है, तो हम कहेंगे येस दिस इज अ फंक्शन. फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए. अगर फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हुआ है दैट मीन्स दैट इज नॉट अ फंक्शन. तो ये अगर फंक्शन है तो इसकी डोमेन क्या होगी? येस यू नो दैट डोमेन इज सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट. तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ कि डोमेन क्या होगी? 2, 5, 8, 11, 14, 17. 2, 5, 8, 11, 14, 17. Set of all the first element. Okay, set of all the first element will be domain of this function. And range of this function, it will be set of all the second elements. So we will take 1. So 1 तो यहाँ पे कितनी बार आया है? सभी में 1 है. 1, 1, 1, 1 second element सब में 1 है. So yes, we will say that range of this function will be 1. So ऐसा नहीं है कि second element सभी में 1 दिया है तो आप बार बार 1 लिखेंगे. हम हमेशा सेट जब भी लिखते हैं हम किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करते, तो ये बात आपको याद रखनी है. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे. सो लेट अस चेक फॉर क्वेश्चन नंबर 2 एज वेल कि क्या फर्स्ट एलिमेंट कहीं रिपीट हुआ है. सो फर्स्ट एलिमेंट है यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. सो यहाँ पे तो कोई भी फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं है, तो हम कहेंगे सेकेंड के लिए भी येस इट इज अ फंक्शन. नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट डोमेन, तो इसकी डोमेन क्या होगी? सो डोमेन ऑफ दिस सेकेंड वन, सेकेंड की डोमेन होगी डोमेन ऑफ रिलेशन, डोमेन ऑफ फंक्शन is equal to set of all the first elements. So we will write it as 2, 4, 6 and 8, 10, 12, 14. 8, 10, 12, 14 and range of function will be 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Now come to the third one. If we will check in the third question, third function जो भी हमें ये दिया है, here we have 1 repeat itself in the 2
ऑर्डर्ड पेयर। तो अगर 1 रिपीट हो रहा है दैट मीन्स यहाँ पे 1 के लिए 2 इमेजेस इन्होंने कंसीडर किया है, 3 भी है और 5 भी है, तो 1 के लिए 2 इमेजेस नहीं हो सकती, दैट मीन्स दिस इज नॉट अ फंक्शन, दिस इज नॉट अ फंक्शन। राइट, नाउ कम टू द second question. Find the domain and range of the following real functions. So first is fx equal to minus modulus x. So here we have to find out domain and range of this real function. तो आपको पता है x की वैल्यू हम यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो x की जो भी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं दैट मीन्स हमारा वो फर्स्ट एलिमेंट होगा हर ऑर्डर्ड पेयर में, x की जो भी वैल्यू हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे डोमेन क्या होगा, सेट ऑफ ऑल दैट। सो यस वी कैन से दैट एज वी नो दैट वी कैन राइट वी नो मॉडुलस ऑफ एक्स is defined as non-negative, is defined as non-negative, क्या होंगे नॉन नेगेटिव, सारे के सारे रियल नंबर्स है ना, नेगेटिव नहीं आएंगे इसमें, रियल नंबर्स। अगर हम नेगेटिव पुट करें तब भी उसका जो है मॉडुलस क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि डोमेन ऑफ फंक्शन, डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू r, सारे रियल नंबर्स आ जाएंगे इसमें। अब बात करते हैं हम कि इसकी रेंज क्या होगी, ठीक है। अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज क्या होगी, yes, range of f will be equal to, देखिए अगर मान लो सपोज मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेती हूँ, अगर सपोज मैंने यहाँ पे अंदर x की जगह पे लिया -1, तो माइनस ऑफ -1 देन इट विल बी अगेन माइनस ऑफ 1, ओके। तो यानी कि बाहर अगर नेगेटिव साइन है तो जितने भी हम नंबर्स लेते जाएंगे वो कैसे होंगे, नेगेटिव आते जाएंगे। तो यानी कि अगर हम रेंज की बात करें, जो फाइनल वैल्यू आएगी इस फंक्शन की उसकी बात करें, सेकेंड ऑर्डर पेयर में सेकेंड एलिमेंट की बात करें, तो वो क्या होगी, वो पॉजिटिव इंटीजर तो होंगे ही नहीं, तो हम कहेंगे कि ये 0 से स्टार्ट होके, ठीक है, और कहाँ तक, -∞ तक, मतलब जितने भी नेगेटिव नंबर है वो सारे ही उसमें कवर हो जाएंगे। तो -∞ दैट इज द ओपन, क्योंकि इंक्लूड नहीं है इसमें, और 0 की तरफ से ये क्लोज होगा इंटरवल, तो रेंज होगी इसकी -∞ to 0। नाउ लेट अस टेक द सेकेंड पार्ट ऑफ इट। सो इन द सेकेंड पार्ट वी हैव गिवन fx इक्वल टू √9 - x²। सो ये गिवन है आपको, गिवन fx इज इक्वल टू √9 - x², ठीक है। तो नाउ यू वुड लाइक टू फाइंड आउट द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कैसे समझेंगे आप। सो फॉर डोमेन ऑफ द फंक्शन वी हैव टू टेक दैट वैल्यू ऑफ x जिससे कि हमारा ये पूरा एक्सप्रेशन की एक वैलिड वैल्यू आए। डोमेन हमेशा क्या होते हैं, हमारी इनपुट होती है, बट वो इनपुट कैसी होनी चाहिए कि जो मेरा ये फंक्शन है √9 - x², इसकी एक वैलिड वैल्यू है। वैलिड वैल्यू मीन्स फॉर एग्जाम्पल कि ये रूट में फंक्शन है, तो यानी कि यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए, रूट में नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए। सो दिस 9 - x², इसकी वैल्यू मुझे कैसी नहीं चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, इसकी वैल्यू होनी चाहिए ग्रेटर देन या इक्वल टू 0। अगर ऐसा है तो यस दैट इज करेक्ट, ठीक है। 9 - x² की वैल्यू मुझे कैसी चाहिए, पॉजिटिव हो या 0 चलेगा, बट वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर इज नॉट द रियल नंबर्स, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि कौन सी वैल्यूज पुट करने पे इसकी वैल्यू, इस फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो ऑब्वियसली वो कैसी होनी चाहिए, 9 से छोटी होनी चाहिए। x की वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं, x की वैल्यू 1 हो सकती है, x की वैल्यू 2 भी हो सकती है, x की वैल्यू 3 भी हो सकती है। बट अगर हम x की वैल्यू को यहाँ पे 4 लें,
तो ये क्या होगा 9 माइनस 4 स्क्वायर यानी कि 9 माइनस 16, और ऐसे केस में ये नेगेटिव आ जाएगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव लाने के लिए x की वैल्यूज़ क्या होंगी, यस इट विल बी। सो यहाँ पे इसे सॉल्व करने के लिए दोनों साइड में एक्स स्क्वायर प्लस कर देती हूँ। So x square will be cancelled out from here, so we can say that and 9 is greater than equal to x square. 9 की वैल्यू कैसी है, x square से greater than or equal to होनी चाहिए। So from here I can say that yes it will be modulus of x is less than equal to 3, मतलब नेगेटिव भी है या नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी वैल्यू ले वो 3 से छोटी ही होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब हम उसका स्क्वायर करेंगे तो वो 9 से छोटा होगा। तो वी कैन से दैट मॉडुलस ऑफ एक्स विल बी लेस देन इक्वल टू 3। तो ऐसी कौन कौन सी वैल्यूज हो सकती हैं, यस फ्रॉम हेयर आई गेट -3 शुड बी लेस देन इक्वल टू एक्स एंड x शुड बी लेस देन इक्वल टू 3। तो आप कौन कौन सी वैल्यूज यहाँ पे लेंगे, आप यहाँ पे लेंगे कि डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा, यस वी कैन राइट डोमेन ऑफ फंक्शन, डोमेन ऑफ f विल बी, ये यहाँ पे हमें दोनों ही तरफ से क्लोज इंटरवल मिले हैं, इट विल बी -3, ठीक है। अगर हम लॉजिकली सोचे तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ये जो वैल्यू है ना हमारी, इसकी फंक्शन की वैल्यू जो है वो हमें 0 से बड़ी चाहिए, मतलब एक पॉजिटिव नंबर चाहिए। अगर मान लो मैंने सपोज यहाँ पे लिखा होता 16 माइनस एक्स स्क्वायर, तो अब इस केस में क्या होता, डोमेन हम यहाँ पे x की वैल्यू क्या क्या पुट कर सकते थे, हम यहाँ पे -4 से लेके 4 तक सारी वैल्यूज़ को पुट कर सकते थे इंक्लूडिंग -4 एंड 4, तो तब उस टाइम पे डोमेन होता -4,4, ठीक है। तो ये ब्रैकेट के अंदर जो हमारे रूट के अंदर जो भी वैल्यू है उसे नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो हम x की कोई भी ऐसी वैल्यूज़ लें कि वो हमेशा पॉजिटिव ही आए। तो वी कैन गेट दैट पॉजिटिव वैल्यूज़ ओनली व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ x एज -4 to 4। सो दिस वाज द डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो डोमेन में आपको इनपुट याद रखना है कि क्या इनपुट दे रहे हो आप, वो इनपुट ऐसे होनी चाहिए कि फंक्शन की जो वैल्यू है वो वैलिड रहे। अब बात करते हैं हम रेंज की, कि यहाँ पे जब हम ये वैल्यूज़ पुट करेंगे तो फाइनली हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या क्या हो सकते हैं, ओके वट एवर विल वी गेट हियर। देखिए यहाँ पे जब हम आउटपुट की बात करें, हम अगर एफ एक्स को y से डिनोट करते हैं तो y विल बी इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ what we can write from here, yes we can write कि अगर देखो y की वैल्यू हमारे पास आई है 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, वेयर y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना, फंक्शन की वैल्यू कैसी होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। सो वी कैन से दैट एक्स स्क्वायर फ्रॉम हेयर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस y स्क्वायर, ठीक है, एंड दिस इम्प्लाइज 9 माइनस y स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए तभी हमारी ये वैल्यू आएगी। x स्क्वायर को ग्रेटर देन इक्वल टू के ग्रेटर देन x स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन ओनली वी विल गेट 9 माइनस y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ओके। सो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें y स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 9 है, देन वी कैन से दैट मॉडुलस ऑफ y विल बी लेस देन इक्वल टू 3, ओके। एक चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है कि अगर हम बात कर रहे हैं रेंज की, तो ये जो हमारी फंक्शन की वैल्यू आने वाली है, जो भी वैलिड वैल्यूज़ आएंगी वो हमारी रेंज कहलाएंगी, ठीक है। तो जब मैं x की वैल्यू, मैं आपको यहीं पे बताती हूँ, अगर मैं x की वैल्यू को 1 पुट करूँ, सपोज मैंने 0 पुट किया अगर सबसे पहले, तो क्या होगा, ये आ जाएगा 3। अगर मैंने x की वैल्यू को 1 पुट किया, देन 9 माइनस 1 रूट ऑफ
8 समथिंग, ठीक है। अगर मैंने x की वैल्यू को 3 पुट कर दिया देन इट विल बी 0। तो आपने देखा कि 3 से लेके 0 तक के बीच की ही वैल्यू हमारे पास आएगी y के लिए। तो जो हमारी डोमेन है जिसके लिए इस फंक्शन की वैल्यू वैलिड है, तो वो कौन कौन सी वैल्यूज हो सकती हैं 0 से लेके, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि ये y इज इट शुड बी ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 3 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ऑब्वियसली कि रेंज ऑफ द फंक्शन जो होगी हमारी, रेंज ऑफ फंक्शन विल बी, इट विल बी क्लोज इंटरवल 0 to 3, ठीक है। सो फंक्शन की वैल्यू हमारी जो आएगी फाइनली वो क्या आएगी, 0 से 3 के बीच में ही लाई करेगी, इससे ज़्यादा या कम नहीं होगी। सो दिस इज आवर सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू द फर्दर question and I will explain this domain and range again in that part. So thank you so much for watching my video. If you have not subscribed my channel, subscribe it and press the bell icon to get all the notifications. Thank you so much for watching this video and don't forget to like the video. Stay tuned, stay safe.